So hello students, today we are going to start with our synthesis part. So सबसे पहले हम लोग start करने वाले सबसे important molecule that is carbaryl. Carbaryl is also known as 7. So इसका अभी हमें दो synthesis देखने हैं. First one is the conventional route, also known as the traditional route. Okay, जहाँ पे हम लोग normal route, regular route हम लोग देखेंगे कि कैसे carbaryl synthesize करेंगे. And the second synthesis which we are going to see is the greener route, जहाँ पे we are going to reduce or eliminate the harmful intermediates and we are going to avoid the harmful reactants or reagents which are being used. Okay, so सबसे पहले we are going to start with the conventional route of carbaryl. Carbaryl also known as 7. So conventional route हम देखेंगे. Conventional route. Now in the conventional route, our starting material is phosgene. तो phosgene क्या होता है? Carbonyl, that is C double bond O, and आजू बाजू में दो क्लोरीन. तो ये रहा फर्स्ट क्लोरीन and ये रहा हमारा second chlorine. Okay, now this carbon is stable as you can see here. Carbon चार bond बनाया and here in this oxygen is making two bonds. दो bond stable है and stable है तो oxygen will carry two lone pairs. Okay, so ये हमारा first reactant हुआ, that is phosgene. Now our second reactant is methylamine. Methylamine is CH3NH2. Now here you can see that stable nitrogen तीन bond बनाता है, तो it is clearly visible. दो bond hydrogen के साथ बनाया and तीसरा bond carbon के साथ. Okay, so remember जब भी synthesis लिखोगे reactant का नाम and product का नाम लिखना ही है. So this is your methylamine. Now, since this nitrogen is stable, it will have one lone pair. Lone pair means electrons which are not taking part in bonding. So, electron says, so definitely it will carry negative charge. So, negative charge will be attracted by the positive charge. So, अभी देखते हैं यहाँ पे मिथाइलमाइन के पास नेगेटिव चार्ज है. So, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे. So, अगर फॉस्जीन को केयरफुली देखा जाए, you can see a bond between carbon and oxygen. So here, if we want to break this bond, the bond between carbon and oxygen. So you can see that why we are breaking this bond, because carbon and oxygen में oxygen is more electronegative. यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ऑक्सीजन के पास रहेगा. तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? ऑक्सीजन विल कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा ऑक्सीजन के पास है. सो इन फ्यूचर इफ दिस बॉन्ड ब्रेक्स, ऑक्सीजन विल कैरी बोथ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके गया तो अभी कार्बन तीन ही बॉन्ड बनाएगा. सो तीन बॉन्ड वाले कार्बन पे अभी कौन अटैक करेगा? द नाइट्रोजन का lone pair. Okay, so this is going to attack on this carbon. Okay, so ये पहला स्टेप हम लोग यहाँ पे दिखा देते कि हो क्या रहा है. So in this first step, I'm going to draw the carbon as it is, but now with a single bond O, double bond अभी break हो चुका है. So initially oxygen was having two lone pairs. अब और दो इलेक्ट्रॉन आ गया तो it will carry three lone pairs. Okay, with a negative charge क्योंकि extra electrons आ गए. Now the chlorine as it is, ये एक क्लोरीन हुआ, ये रहा हमारा दूसरा क्लोरीन. अब ये कार्बन इट इज नॉट स्टेबल, सो इसकी वजह से ये नाइट्रोजन ने यहाँ पे अटैक किया. ठीक है, सो अभी ये नाइट्रोजन ने अटैक किया. नाउ दिस कार्बन इज स्टेबल बिकॉज कार्बन मेक्स फोर बॉन्ड, स्टेबल कार्बन फोर बॉन्ड, सो इट इज स्टेबल. नाउ ये नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है. आई एम गोइंग टू शो इट सेपरेटली. तो ये रहा पहला हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन एंड इट इज हैविंग दिस मिथाइल ग्रुप. तो ये रहा उसका मिथाइल ग्रुप. Okay, now if I am carefully observing this molecule, you can see that nitrogen is not stable. Stable nitrogen तीन बॉन्ड बनाता है, but इसने चार बॉन्ड बनाया, तो इसके लिए इस पे रहेगा अभी पॉजिटिव चार्ज. एंड ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं है, बिकॉज स्टेबल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इसने सिंगल बॉन्ड बनाया. Okay, now what is going to happen? You have learnt in the basics video that hydrogen can donate its electron and it can take away the electron. So इस केस में क्या होगा? You can see that hydrogen will donate its electron because nitrogen को electron की जरूरत है. It wants to become
स्टेबल सो दैट 3 बॉन्ड बन सके एंड एक लोन पेयर आ जाए उसके पास। ओके, अब ये देखकर ऑक्सीजन तो चुप नहीं बैठेगा, सो ऑक्सीजन विल also make a double bond by donating its electron, extra pair of electron, so that oxygen becomes stable, but carbon is already stable. So why it would make a fifth bond over here? तो इसके लिए अभी क्या होगा? You can see that carbon and chlorine के बीच का bond में chlorine is more electronegative. So यहाँ पे क्या होगा? chlorine दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ओके, सो अब ये सारे स्टेप्स जो हो रहा है हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो ओवर हियर कार्बन, अब इसने ऑक्सीजन ने अपना तीसरा लोन पेयर डोनेट कर लिया टू मेक द डबल बॉन्ड O। सो नाउ दिस ऑक्सीजन इज स्टेबल, सो स्टेबल ऑक्सीजन विल कैरी 2 लोन पेयर्स। अब यहाँ पे ये क्लोरीन एज इट इज, एक जो क्लोरीन निकला हुआ है वो मैं यहाँ पे फिलहाल दिखा देता हूँ। नाउ क्लोरीन पे कौन सा चार्ज? दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके गया तो इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। ओके, नाउ ये बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है तो ये रहा ये बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ एंड यहाँ पर है मिथाइल एज इट इज। अब नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन ऑलरेडी निकल चुका है। अब हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया नाइट्रोजन को, सो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया है तो ये इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, H प्लस फॉर्म में घूमेगा और ये जो हाइड्रोजन है ये एज इट इज यहाँ पे बॉन्ड के साथ मैं दिखा रहा हूँ। ओके, सो नाइट्रोजन को अभी इलेक्ट्रॉन मिल गया। नाउ दिस नाइट्रोजन स्टेबल बिकॉज 3 बॉन्ड बन चुका है एंड इट विल कैरी अ लोन पेयर। ओके, नाउ यहाँ पे यू कैन सी दिस Cl माइनस एंड H प्लस, ये दोनों ऐसे ही घूम रहे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ये दोनों कंबाइन होके यू आर गोइंग टू गेट अ बाई प्रोडक्ट HCl। तो बाई प्रोडक्ट है, इसके लिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है बिलो द एरो। ओके, सो दिस इज अ बाई प्रोडक्ट विच आर गोइंग टू गेट ओवर हियर। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये नाइट्रोजन अभी भी शांत नहीं बैठने वाला है। अब यहाँ पे यू कैन सी दिस ऑक्सीजन ओवर हियर, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच वापस से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जाएगा। ओके, वापस से वही सेम चीज होने वाला है। सो जब ये लेके गया तो क्या होगा? नाउ यू नो इन फ्यूचर इफ दिस बॉन्ड ब्रेक्स ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज। सो इसके लिए मैं डेल्टा नेगेटिव दिखा रहा हूँ। डेल्टा क्यों? क्योंकि अभी भी बॉन्ड है यहाँ पे। ओके, इन फ्यूचर इफ द बॉन्ड ब्रेक्स पूरा नेगेटिव होगा एंड कार्बन विल कैरी डेल्टा प्लस। अब यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है तो दिस विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन सो दैट स्टेबल हो। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखते। सो this carbon as it is. Up again, oxygen will carry 3 lone pairs because उसने और एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे because of this breaking of this bond. ये क्लोरीन as it is, ओके, ये नाइट्रोजन एंड ये रहा हमारा हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप। ओके, नाउ नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया कार्बन को, सो you can see double bond over here. Okay. Now, if you're carefully observing, this oxygen is not stable, so it will carry negative charge, extra electrons है इसके पास, and this nitrogen जो कि पहले stable था अभी unstable है because it has made 4 bonds. Okay, so अभी next step में क्या हो सकता है? फर्स्ट स्टेप जैसे ही जैसा पहला हमने देखा ऑलमोस्ट सिमिलर सा कुछ होने वाला है। हियर यू कैन सी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कैपेसिटी है, इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। सो इस केस में अगेन ये क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा ताकि वो स्टेबल हो। ठीक है, ऑक्सीजन अभी क्या करेगा? इसको भी स्टेबल होना है, ये समझ गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। सो इट इज गोइंग टू रिटर्न इट्स इलेक्ट्रॉन सो दैट बॉन्ड बन जाए, बट ये कार्बन तो ऑलरेडी स्टेबल है। सो यहाँ पे यू कैन सी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। सो कार्बन एंड क्लोरीन में क्लोरीन जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो अगेन क्लोरीन ब्रेक होगा, क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ताकि कार्बन स्टेबल हो। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है एक बार देख लेते। सो दिस इज योर कार्बन, ठीक है, एंड यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O है तो वो मैं दिखा देता हूँ, ये रहा डबल बॉन्ड O, क्योंकि अभी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न कर लिया। नाउ दिस ऑक्सीजन इज स्टेबल सो इट विल कैरी 2 लोन पेयर्स। नाउ यू कैन सी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ओवर हियर,
कार्बन पे अभी क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन निकल चुका है, तो ये क्लोरीन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। Cl पे कौन-सा चार्ज? दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो क्लोरीन विल कैरी नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस नाइट्रोजन, इस पे हाइड्रोजन रहेगा क्या अभी? नहीं, क्योंकि अभी हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो हाइड्रोजन पे रहेगा अभी पॉजिटिव चार्ज एंड इस पे जो मिथाइल ग्रुप है वो एज़ इट इज़। Okay. Again, you can see this H plus and Cl minus would combine to form the byproduct HCl. So I'm going to write minus HCl. Okay. So I hope यहाँ तक समझ में आ रहा है। So ये हमारा एक important intermediate बन चुका है which is called methyl isocyanate. इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ मैं। O double bond C double bond N CH3. Okay, oxygen is stable, so it will have two lone pairs. Carbon is stable, 4 bond. Nitrogen stable, 3 bond will have one lone pair. Okay, so this compound is called methyl isocyanate. जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, वो इस गैस का लीकेज की वजह से हुआ था। ये गैस एक सिलेंडर के अंदर ट्रैप था एंड वो सिलेंडर हल्का सा क्रैक हो गया एंड वो गैस लीक हो गया। सो दिस इज द इंटरमीडिएट। अब तक हमारा कार्बोराइल बना नहीं है, तो अभी मिथाइल आइसोसाइनेट में वी नीड टू ऐड द नेक्स्ट रिएक्टेंट विच इज 1 नाफ्थॉल। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नैफ्थलीन। नैफ्थलीन इज टू बेंजीन रिंग अटैच टुगेदर। तो ये हमारा होगा फर्स्ट बेंजीन रिंग एंड दिस इज योर सेकेंड benzene ring which are joined together. So naphthalene है तो alternate single and double bond we have to show. अब one naphthol, all means alcohol. So one बोला है यानी कि first position पे you will attach the alcohol group OH. So this oxygen is stable, so it will carry two lone pairs. Why? Because एक bond hydrogen के साथ, एक bond carbon के साथ, तो दो bond बनाए, oxygen is stable. So again, the name of this reactant is 1 naphthol. Okay, now here you can see that oxygen is carrying electrons. So ये अटैक करने वाला है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। So यहाँ पे in methyl isocyanate you can see the bond between carbon oxygen and carbon nitrogen. So which is more electronegative? Nitrogen or oxygen? Yes, oxygen is more electronegative. यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए, ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा होगा एज़ कंपेयर टू कार्बन एंड नाइट्रोजन। ओके, सो कौन सा बॉन्ड वीक हुआ? कार्बन ऑक्सीजन। सो इन फ्यूचर द बॉन्ड which is going to break is this one. So in future if this bond breaks, oxygen will carry नेगेटिव चार्ज। सो अभी भी बॉन्ड दिखा है, इसके लिए आई एम गोइंग टू शो डेल्टा माइनस एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया है तो कार्बन पे रहेगा डेल्टा प्लस। ओके, सो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, ये अभी कहाँ पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। सो ये रहा हमारा पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे अटैक होगा। सो आई एम गोइंग टू शो दिस अटैक ओवर हियर इन द नेक्स्ट स्टेप। सो वन नाफ्थॉल नैफ्थलीन रिंग हम एज इट इज बनाएंगे। Okay, instead of alternate double bond, you can alternate single and double bond. You can make this circle also because double bond resonance में. Now first position पे ध्यान रखना, first position पे ही बनाना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, ये रहा, मैं हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा देता हूँ। एंड इस ऑक्सीजन ने अटैक किया है कार्बन पे, सो ये रहा कार्बन। ओके, अब ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ रहेगा क्या? क्योंकि इस बॉन्ड ने ब्रेक कर लिया, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो अभी हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ओ। तो ये रहा सिंगल बॉन्ड ओ। नाउ दिस ऑक्सीजन वाज हैविंग टू लोन पेयर्स ऑलरेडी, तो ये रहा टू लोन पेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब होंगे तीन लोन पेयर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स लेके गया एंड यहाँ पे अभी कार्बन है, डबल बॉन्ड एंड एज इट इज एंड दिस मिथाइल ग्रुप एज इट इज। ओके, अब ध्यान से देखो इस ऑक्सीजन को। दिस ऑक्सीजन इज हैविंग थ्री बॉन्ड्स व्हिच इज अनस्टेबल, सो इस पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज
ये ऑक्सीजन पे है 3 लोन पेयर, सो इस पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन इज स्टेबल, सो इट विल कैरी अ लोन पेयर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये हाइड्रोजन अगेन हाइड्रोजन कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन एंड टेक अवे द इलेक्ट्रॉन। तो टू मेक ऑक्सीजन स्टेबल, अब इसके पास एक ही लोन पेयर है और एक लोन पेयर चाहिए, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को। ओके, तो ये तो हो गया स्टेबल, बट ये ऑक्सीजन शांत बैठेगा नहीं, बिकॉज इस ऑक्सीजन को भी स्टेबल बनना है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ताकि ये डबल बॉन्ड ओ बन सके। बट कार्बन इज ऑलरेडी स्टेबल ओवर हियर, इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? कार्बन नाइट्रोजन में यू कैन सी कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इन फ्यूचर इफ द बॉन्ड ब्रेक्स, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी टेकन अप बाय द नाइट्रोजन। सो ये स्टेप मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो द naphthalene ring as it is with alternate single and double bond, and on the first position we show the oxygen which is now stable because hydrogen निकल चुका है। ये हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ H प्लस फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है ऑक्सीजन को। ओके, नाउ यहाँ पे ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ। ये रहा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुका है। अब सिंगल बॉन्ड हो रहेगा कि डबल बॉन्ड हो? नाउ ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया, तो अभी डबल बॉन्ड हो बन जाएगा बिकॉज इट इज स्टेबल। एंड इस पे अभी रहेगा 2 लोन पेयर्स, बिकॉज स्टेबल ऑक्सीजन है तो स्टेबल लोन पेयर्स भी रहेंगे। अब डबल बॉन्ड N will get converted into single bond N। यहाँ पे ऑलरेडी एक लोन पेयर था और एक लोन पेयर आ गया, यानी कि अभी इस पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। एंड इस नाइट्रोजन पे है मिथाइल ग्रुप CH3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यू कैन सी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है एंड ये H प्लस ऐसे ही घूम रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। यस, तो वही हमें यहाँ पे दिखाना है, उनको आपस में रिएक्ट करवा के यू आर गोइंग टू मेक द final structure over here. So naphthalene ring, which is two combined benzene rings with alternate single and double bond, and इसके first position पे oxygen है which is now stable, so it will carry two lone pairs। तो ये रहा first lone pair, ये रहा second lone pair। ठीक है, अब इस पे है अपना कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O। Okay, now this oxygen is also stable, so इस पे भी रहेगा 2 lone pairs। एंड अब इस पे है नाइट्रोजन जिस पे नेगेटिव चार्ज था, बट अभी उस पे अटैक हो चुका है हाइड्रोजन का। तो नाउ दिस नाइट्रोजन इज ऑल्सो स्टेबल बिकॉज स्टेबल नाइट्रोजन मेक्स 3 बॉन्ड्स। सो स्टेबल नाइट्रोजन है तो इट विल हैव इट्स लोन पेयर। So this is the structure of carbaryl, which is also known as 7। Okay, so Bhopal gas tragedy हुआ था because of the preparation of carbaryl. During the preparation of carbaryl, the intermediate methyl isocyanate was stored in the tank which got leaked. Okay, so अभी ये था हमारा conventional route, जो traditional route बनाया गया था to prepare carbaryl। Now we have to see how to eliminate। Now you can see there are lot of steps, तो इन सारे steps को थोड़ा सा कम करना है। एंड ये जो हार्मफुल मिथाइल आइसोसाइनेट है इसको तो डेफिनेटली एलिमिनेट करना है, which we will be looking in the green root synthesis। I hope you understood this synthesis. Okay.